કોરોનાની ત્રીજી લહેર ફરીથી આવી રહી છે અને કેરળ તમિલનાડુથી માંડીને આખા હિન્દુસ્તાનમાં કોરોનાનો કહેર ભરપી રહ્યો છે. એના માટે શું કરવાનું? એક તો આ દૂધમાં હળદર, શિલાજીત અને આ કેસર. કેસર તો આટલા દાણા આમ નાખી દે ને તો આમ તો 2 દાણા આમ મૂડામાં નાખે ને, જો આમ થોડી વારમાં મારી જીભ કેસરિયા થઈ જશે અને આખું શરીર એનર્જાઇઝ થઈ જશે, પૂરા બોડીની બેટરી ચાર્જ થઈ જશે. આ તો જો કેસરિયા થઈ ગઈ અને આ આખું દૂધમાં કેસર થઈ ગયું અને આ દૂધમાં કેસર, હળદર અને આદુ તમે બંનેને આમ લઈને અને એને આમ અને ઘસી લો તો એ આદુ અને આ હળદર એ પણ બહુ સારું. એ તો ઔષધરૂપ થઈ ગયું આ દૂધ તો બધું. આ આદુ આમ ઘસીને અને હળદર આ ઘસીને તમે આમાં નાખી દો તો આ તો ગોલ્ડન મિલ્ક તૈયાર થઈ ગયું. અને આમાં પછી થોડું શિલાજીત નાખી દીધું. આ શિલાજીત હા, તો જેને લો બીપી હોય ને એના માટે તો આ પરમ ઔષધ છે. આમ કાળું થઈ જાય, કોફી જેવો ટેસ્ટ આવે એમ. અને મેં થોડું મધ અને સાકર કે તમે ચ્યવનપ્રાશ સાથે એને લઈ લો તો એનો 1 જ કપ એ તો શક્તિ માટે પર્યાપ્ત હોય. આ તો થયું દૂધ. પછી આ છે દિવ્ય પેય. આ દિવ્ય પેયને અને તમે આમ ઉકાળીને અને પછી એને ગાળીને પી લો તમે તો આ દિવ્ય પેય તૈયાર થઈ. અને આ અહીંયા છે ઉકાળો. આ ઉકાળો છે ગળો, લીમડાના પાન, આ લીમડાના પાન, આ ગળો એને ખાંડીને સારી રીતે એને આમ ખાંડી લો. આમ દસ્તામાં ખાંડીને પછી એને આમ નાખવામાં. આ બધું બહુ જ જરૂરી છે. આ તો આ ગળો, લીમડાના પાંદડા, તુલસી, હળદર, આદુ, થોડું લવિંગ, થોડી મરી, થોડી જેઠી મધ અને બધું આ થોડું અર્જુનની છાલ, આ પછી આપણે તજ કહીએ આ તજ, આ બધું નાખી દીધું અને પછી એને આમ ગાળીને અને પીવામાં પણ બહુ સ્વાદિષ્ટ હોય. આમ પછી એને પી લેવા. આ તો બહુ જ સ્વાદિષ્ટ હોય. આમાં તજ નાખી દીધું ને એટલે અને આ રેડીમેડ છે. આ દિવ્ય પેય રેડીમેડ છે. આ દિવ્ય પેય તમે ઉકાળીને તૈયાર કરો અને આ શ્વાસારીનો ઉકાળો પણ પીવી શકો, જેને જેવું ગમે. આવું આમ આ ઉકાળીને પી લેજો ઉકાળો. આમાં દિવ્ય પેય પણ નાખી દીધું તો બંને મિક્સ થઈ ગયા અને આ તો જબરદસ્ત છે. બીજો ઉપાય છે લपेट. ये लपेट का भी एक उपाय है. लेट जाओ. एक को तो दिव्य धारा रेडीमेड, ये पतंजलि बाम, पूरा पतंजलि बाम का एक डब्बी ऐसे लिया और लगा दिया. दूसरा है ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, लसन, डोंगरी, हल्दी, हळદર અને આદુ આ બધું મિક્સ કરીને આ લેપ આમ લગાવી દે. અમારા બંસીલાલ ભાઈ છે, આ તો કોરોનાથી લક્ષ્મી દત્તજી કોરોનાથી નિરોગ થઈ ગયા છે. આ તો યોગી છે, પણ રોગીને પણ આવું લગાડીને અને લપેટ કરી નાખો. એકદમ ઓક્સિજન લેવલ 70-80 ઉપર ગયું હોત તો વધી જાય તરત. આવું છે. અને આ બધા કોરોનાથી મુક્ત થઈને અહીંયા બેસેલા છે. આ પ્રમાણ છે.
આ લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે कि कोरोना ने मात આપી શકે છે। आज फिर से कोरोना की लहर जब पूरे देश में है तो ये सारे लाइव एग्जाम्पल्स को भी हम सुनेंगे। આ બધાને આપણે સાંભળીશ। અને આ નાની દીકરીઓ છે અને આ મોટી દીકરી છે। કોરોનામાં શું કરવાનું? એક તો પ્રાણાયામ કરવાનું, ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ करो બધા। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा ऑपरेट हो चुका है। अच्छा। लेकिन मैं कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में रही। अनुलोम विलोम, अनुतेल और रात में हल्दी दूध कभी नहीं छोड़ी। कंटिन्यू मैं कोरोना में लेते रही हूँ, जिसकी वजह से मतलब कोरोना हो गया था? हाँ, मेरे कैंपस में ये भाभी लोग हैं, इन लोग हाँ तो लेकिन मतलब मुझे कोरोना ने टच भी नहीं किया। और सबको हाँ, मुझसे कुछ लोगों ने ऐसा किया था जैसे मेरे को छूत का बीमारी, क्योंकि मेरा हार्ट ऑपरेट है, वो थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। लेकिन कोई नहीं, अब तो एकदम अच्छी बेटी है। देखो, हार्ट का पेशेंट होने के बाद सबकी सेवा की और अपने आप को कोरोना नहीं होने दिया और दूसरों को कोरोना से उभार लिया, तो अच्छी बेटी। हाँ, अपने हस्बैंड अपने बच्चे लोग को गिलोई और तुलसी देते रही। लेकिन मेरे ये के मुझे विटामिन के बिल्कुल मना है। मतलब सारी साग सब्जी नहीं ले सकती हूँ, तो मैं फिर मेरे को दालचीनी इस तरह का चीज़ यूज़ की और जो मैं ले सकती थी। विटामिन के थोड़ा बहुत नेचुरल जाता है, दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते हैं हाँ विटामिन के ज़्यादा जाएगा तो ब्लड के थक्के जम जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। तुम योग क्या करो, मस्त रहा कर। ये काम सारे देश में हो रहा था कि जिसको कोरोना हुआ उसने योग किया और बच गए। योग ने, आयुर्वेद ने, गिलोय ने, तुलसी ने, ऋषियों के ज्ञान ने, वेदों के ज्ञान ने, प्रकृति ने, संस्कृति ने, साइंस ने और सन्यासी ने, ये मिलाप है यहाँ योग पीठ में। पतंजलि योग पीठ में योगग्राम निरामय में 3-4 चीज़ों का मेल है, प्रकृति, संस्कृति, साइंस और सन्यासी। योग के अंदर ये सारे तत्व हैं। ऐसे ही ये योग करें, आराम आराम से 10 बार से शुरू करें और धीरे माटे ओबेसिटी माटे जुदा जुदा योगासनों में दररोज बताइए छे। પણ 100 માટે પ્રાણાયામ તો રામબાણ છે। और इस गुड़िया ने तो बाल भी तेरे झड़ने लग गए थे ज्यादा। हाँ जी, कोरोना में झड़ने लग गए थे बाबा जी बहुत। एक बार कोरोना होके गया तेरे को? कोरोना होके गया। ये कोरोना भी अनवांटेड गेस्ट है, बिना बुलाए आ जाता, पता नहीं कहाँ से घुस आता। तो ये बिना बुलाए मेहमान कहीं भी आ सकता है। अनवांटेड गेस्ट છે આ કોરોના, કોઈને પણ થઈ જાય। તોય પણ તમે દરરોજ યોગ કરો, આસન પ્રાણાયામ કરો, ગળો તુલસીનો ઉપયોગ કરો અને ઘરમાં કોરોનિલ સાસારી અણુतेल રાખો। इतना कर लेते हैं यदि दररोज, हर रोज। चलो भस्त्रिका करो, खाली भस्त्रिका कर लिया। जो स्ट्रोंग है वो 100 बार भुजंग आसन कर ले। फेफड़े तो फौलादी हो जाते, वज्र जैसे। जिसने विशेष आरोग्य पाया है, हाँ, वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले तो वेदिका ने तो कोरोना कितने दिन में ठीक किया बेटा? बाबा जी 7 दिन तक तो मेरा बुखार उतरा ही नहीं था। उसके बाद कोरोनिल की किट मंगाई हमने, उसके बाद 3 दिन में आराम लग गया। रोज सुबह शाम लपेट बांधी पैरों में, पेट पे, सारे में, और योगा करते थे। और बाल तो इतने झड़ने लगे थे, मुझे तो लगा था कि अब तो मतलब जवानी में ही कंची हो जाऊंगी मैं। पूरी खेती उजड़ जाएगी। हाँ? तो अब तो लेकिन आपके बाल अच्छे हो गए? अब तो बहुत अच्छे हो गए बाबा जी, बहुत ही अच्छे। ग्रोथ भी नहीं थी, ग्रोथ भी हो गई, अब तो लंबे भी हो गए। ये कितनी देर करती है? ये 1 घंटा करती हूँ मैं। अब थोड़ा कर दे। और केश कांति? केश कांति शैम्पू और ऑयल रोज। केश कांति ऑयल। अभी केश कांति एडवांस तेल भी बनाती है। केश कांति एडवांस इतना जबरदस्त है, वो तो लगाते ही पहले ही दिन से फायदा हो जाता है। कोरोना में बहुत बात झड़े, ये बाल, आँख, नाक, कान, गला, फेफड़ा, हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, पूरी फिर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, बहुत वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को प्रकोपित कर देता है। तो चलो वेदिका ने भी, चलो अब कपालभाति करो। वेदिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही रामबाण। एक एक करके अपना अपना लाभ बताते जाएंगे। जिन्होंने विशेष लाभ पाया
कैसे अपने आप को कोरोना से बचाया, कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, बाबा जी उन प्रणाम। तीनों के लिए स्वासारी, कोरोनिल, अणु तेल, रामबाण है और त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। पहली बार इसको क्लासिफिकेशन करते हैं ना, अलग अलग ये वेरिएंट और अलग अलग नाम दे रखे हैं कोरोना के, नए नए स्ट्रेन्स के, नए नए अवतारों के। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये कफज ज्वर है और कुछ नहीं है। क्या है? पहले कफज ज्वर, फिर ये वात प्रकोपित करता है, पूरे शरीर में दर्द करता है, इसलिए ये त्रिदोष को प्रकोपित करता है, फिर पित्त को भी प्रकोपित करता है और फिर ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर के अंदर उपद्रव करता है, कॉम्प्लिकेशंस लाता है। और उन सब का समाधान भी बताएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आ समाधान छे कोरोना में। और जो लाभ हुआ, क्या बाबा जी विशेष प्रणाम। लाभ हुआ? मेरा नाम अनूप गुप्ता है, मैं लुधियाना से आया हूँ बाबा जी। मेरे को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और थोड़ी सी किडनी की प्रॉब्लम भी थी। ओ, और 3 प्रॉब्लम एक साथ हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी की प्रॉब्लम। बोले तो कोरोना में मरेगा, किसी को उम्र ज्यादा हो तो बोले तो मरेगा, कोई मोटा है तो बोले तो मरेगा। अब तो ऐसा लोगों में भय बैठा रखा है और हमने सबको भय मुक्त किया। देखो बाबा ये जी भी एग्जाम्पल है। नवंबर में मुझे कोरोना हो गया था। जैसे ही मुझे फीवर आया, मैंने कोरोनिल टैबलेट खानी शुरू कर दी बाबा जी, और साथ में गिलो और तुलसी और नीम का काढ़ा बनाकर 4 टाइम पीना शुरू कर दिया। अच्छा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल फीवर आया 7 दिन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सारी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक था मेरा, सारा 99। क्रिटिकल पेशेंट कोरोना, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा? नहीं बाबा जी, घर पे ही था बिल्कुल। घर पे रहा, हॉस्पिटल में जाकर के तो कई वापस ही नहीं आए। लोग बावड़ेपन में, मैं कहता हूँ 99% सभी बीमारियों का इलाज योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में है, तो करके दिखाया और ये ठीक हो गए, पूरे कॉम्प्लिकेशंस मिटा दिए। स्वामी जी के चरणों में कोटिश नमन। मैं बाल सुब्रमण्यम तमिलनाडु से राज्य प्रभारी हूँ। ये मुझे- तमिलनाडु से बाला सुब्रमण्य हमारा। मुझे कोरोना के साथ कोरोना निमोनिया हो गया था। और निमोनिया? निमोनिया ओह। 78% हो गई थी। हम वेंटिलेटर के मरीज होके गए, हॉस्पिटल बहुत खोज रहे थे, 6 घंटा तक परेशान हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचते साथ मैंने मना कर दिया कि मैं ऑक्सीजन भी नहीं लूँगा, और कोरोनिल और श्वासवारी ये करते हुए हॉस्पिटल में ही मैं प्राणायाम करता रहा, और 8 दिनों में मैंने पूरा कोरोना से विजय पाकर घर लौटा। और आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ भी बहुत स्वस्थ हूँ स्वामी जी आपके आशीर्वाद से। हमारे घर में एक दुर्घटना हो गई, मेरी बहुरानी की मृत्यु हो गई। ओए, किस बात से? हाँ जी, कोरोना से। कोरोना से? हाँ जी, उसकी कोरोना ठीक होके हार्ट फेल हो गई। हार्ट फेल ये से बहुतों का हुआ। उसके कारण कोरोना ठीक हुआ, बाद में हार्ट फेल हो गया। जैसे रोहित सरदाना के साथ भी हुआ, कोरोना ठीक हुआ, कार्डिक अरेस्ट हो गया। क्योंकि इतना ज़्यादा रेमडेसिविर, इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, इतना ज़्यादा स्टेरॉइड दिया कि शरीर झेले तो सही, पागलों की तरह ठोक देते हैं। अरे कोरोना नेगेटिव करने के बाद ये भी तो सोच लो, आदमी को भी जिंदा रखना है। धन्यवाद। लेकिन बाला सुब्रमण्यम जी हमारे सबको योग सिखा रहे हैं, पूरा तमिलनाडु में। ये वहीं के मूल निवासी हैं, पूरे देश में ऐसे योग के झंडे गाड़ रखे हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। कितनों को खोया है लोगों ने, अपनों को। देखो, बेटों ने अपने बाप को, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को, दामाद को, बेटियों को इस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, और लोगों को समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आया उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, बाकी गफलत में। इसलिए स्वामी जी, मैं श्याम पिंजानी, अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, अमरावती से। वहाँ भी मैंने बड़ा प्रोग्राम रखा था। हाँ, आए थे आप। हाँ, स्वामी जी, अब कोरोना ऐसी बात थी कि पहली वेव में कोरोना हुआ हमको, मेरे बेटे को और मेरी मिसेस को, मगर हम तीनों को टच करके निकल गए। क्योंकि हम ये गिलो, एलोवेरा और ये सारी आपकी जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम काफ़ी समय से लेते हुए आते हैं, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। हम होम क्वारंटाइन रहे और तीनों सेफ आ गए। पूरा बाकी परिवार बचा लिया। प्राणायाम और अनुलोम विलोम हम करते रहे। એટલા માટે હું કહું છું કે દરેક ઘરમાં કોરોનિલ, શ્વાસારી, અણુતેલ એ તો હોવું જ જોઈએ. ગળો, તુલસી એ તો દરેક ઘરમાં આમ એના તુલસીના આમ ઝાડ અને ગળોના ઝાડ
આ તો દરેક ઘરમાં હોવા જ જોઈએ. તુલસીના પૌધા અને આ ગળોની બેલ આ તો દરેક ઘરમાં હોવી જોઈએ. પછી હળદર આદુ આ ઘરે લગાવી શકો. આ નાનકડી વસ્તુઓ કરીને નતર અમે શ્વાસારી ગળો તુલસી આ બધું આપીએ છીએ બધાને, ઉકાળાના બધી ઔષધિઓને. આ તો બધું સેકન્ડરી છે, પણ ઘરે તમે રાખો. स्वामी जी के चरणों में सत सत प्रणाम. मैं राम अवतार यादव हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ. अच्छा, मैं पूर्व प्रिंसिपल था, रिटायर्ड हूँ. मेरी वो एज जो है इस समय हमीरपुर में तो मैं भी गया था वहाँ. जी आज मैं आपसे मिला था हमीरपुर मौदहा में. हाँ। मैं आपसे भेंट किया था, चरणों के मुझे आशीर्वाद मिला था. मुझे सब महाराज जी कोरोना 28 अप्रैल को हुआ और 15 को जाकर के मैंने इससे निजात पाया. और मैं जब भी ये आपकी कोरोना किट लेता था, इसके बाद में काढ़े में जो है तुलसी गिलो और नीम की पत्ती डाल करके और दालचीनी डाल करके ये काढ़ा मैं 3 बार पिया करता था. इसके बाद में जब भी मैं जगह करूं तब भी अनुलोम विलोम करता ही रहूं, क्योंकि मैं इतना इससे ग्रसित हो गया था इससे कोरोना से कि लगता था कि शायद मेरा जीवन दोबारा नहीं मिलेगा. तो मैं जग करके एकदम अनुलोम विलोम करता ही रहता था. ये दवा आपकी जो है ये दवा लेने के बाद भी ये अनुलोम विलोम मेरा चलता ही रहता था. और बच्चे जो है वो करें कि पापा आप जो है जरूर ये अनुलोम विलोम करते रहें, इससे जरूर निजात मिलेगा. क्योंकि बाबा जी की ये परम औषधि है जिसके द्वारा जो है सारा संसार ठीक हो रहा था. आप ठीक होंगे. मैं उस पर जो है 15 दिन बीमार गिरा. जी हाँ. कितने दिन में ठीक हो गए? 15 दिन में ठीक हुआ. और उम्र कितनी है? 67 ईयर. 67 ईयर्स. तो ये श्वासारी, ये कोरोनिल, ये श्वासारी वटी है, ये अणु तेल, फिर ये दिव्य धारा ड्रॉप में भी दे दी हमने. ये इस तरह से भी आती है, रोल के अंदर भी सूंघने के लिए बहुत अच्छी होती है. श्वासारी गोल्ड, जिनका एकदम बहुत ज़्यादा लंग में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, 70-80% फेफड़े ख़राब हो गए, उसको भी रिकवर कर देती है श्वासारी गोल्ड. फिर श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, ये लपेट लगाने के लिए बाम. ये श्वासारी गोल्ड के साथ साथ कर्क्यूमिन गोल्ड. और छोटे बच्चों के लिए सिला तुलसी ड्रॉप. ये सिला तुलसी ड्रॉप जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए. ए दूसरे छोटे बच्चे इधर आओ. तुमको भी हुआ था कोरोना? इधर आ. अब ये छोटे बच्चे हैं. और तुमको कब हो गया था? मुझे स्वामी जी अप्रैल में कोरोना हुआ था. पूरी फैमिली को हो गया था. मम्मी लोग कहाँ वैक्सीन. से आई हो तुम? मैं जबलपुर से आया हूँ. जबलपुर से. फिर कितने दिन में ठीक किया? हम लोग ने 5 दिन में कोरोना ठीक कर लिया. 5 दिन में कोरोना ठीक है. योग से ही स्वामी जी हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए थे, क्वारंटीन घर ही में हम लोग ने ठीक. और कोई नहीं सेवा करने वाला, कुछ करने वाला नहीं था स्वामी जी. हम लोग रो रो करके हम और बेटा कोरोनिल आपकी खाया. और हम बेटा बोले जब ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो तो बोले पापा आप अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो. हम लोग अनुलोम विलोम करके स्वामी जी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करे. और श्वासारी गोल्ड लिया था खाली. चौथे दिन श्वासारी गोल्ड बहुत जबरदस्त. श्वासारी गोल्ड, ऑक्सीजन लेवल कम होता था तो बेटा बोलता था पापा अनुलोम विलोम करो, श्वासारी गोल्ड लो. हम लोग मतलब मौत को मात दे करके स्वामी जी आपके आश्रम में आए. 5 लोग आए हैं स्वामी जी. हम लोग पूरा परिवार लेके आए स्वामी जी आपके शरण. ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस भी जबरदस्त हैं. बाल अभी बहुत झड़ रहे हैं मम्मी किसके, स्वामी जी हमारे वाइफ के बहुत परेशान है. ये तुम्हारी मम्मी को तो एक केश कांति एडवांस ये नया बनाया है. केश कांति इसका नाम रखा है. हर्बल हेयर एक्सपर्ट वाले नया वाला है. ये नया वाला है. ये थोड़ा महंगा तो है बड़ा. ये इसमें क्योंकि जड़ी बूटियाँ पहले से कई गुना ज़्यादा महंगी और ज़्यादा रिसर्च करके तैयार कर दिया है. तो ये तो तेरी मम्मी को दे देना है ना. गिफ्ट दे दिया तेरी मम्मी को. स्वामी जी और बच्चे ये सिला तुलसी छोटे बच्चों के लिए. कभी भी सर्दी जुकाम हो जाए तो एलोपैथी की दवाई में 2 पानी में बूंद डालो और पी लो. स्वामी जी के चरणों में नमन. प्रणाम. मेरे पूरे परिवार को कोरोना हुआ था अप्रैल महीने में. और मेरी पत्नी है वो मेरी माँ को लेकर वो टीका दिलवाने गई थी. अच्छा, वैक्सीन. और वहाँ से वैक्सीन दिलवाने से आई, वहाँ से स्टार्ट हो गया हम लोगों का. पत्नी को भी हुआ और बेटा की स्थिति तो सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी. बेटा की स्थिति तो सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी. कहाँ है बेटा तुम्हारा? वो तो खांसते खांसते उलट जाता था. हाँ, माँ से कहता था अब नहीं बचूंगा, मैं अब नहीं बचूंगा. और इतनी ज़्यादा परेशानी हुई. लेकिन हम लोग कोरोनिल और श्वासारी का प्रयोग.
संजय, बिहार से वैशाली जिले। वही है जो जी जी जी, लीवर। तो लीवर ठीक होने के बाद फिर कोरोना हो गया? जी, लीवर ठीक होने के बाद कोरोना, हमको तो सबसे ज्यादा डर ये लग रहा था, हम ही को नहीं, परिवार के लोगों को। होगी, ये तो मरने की कगार पर पहुंच गया था। जी, और उसके बाद सारे हमारे मोहल्ले सब लोग जानते थे कि इनको नहीं होना चाहिए कोरोना, नहीं तो ये तो गड़बड़ ही हो जाएंगे। तो मुझे भी चिंता लगी थी कि मैं तो लीवर का योग रोज कर रहा था जी। जो योग करेगा ना उसके चारों तरफ ऐसे ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसको मैं बोलता हूँ योग का सुरक्षा कवच, अभेद्य किला, ब्रह्मास्त्र है। और ये लाइव प्रमाण है। और बेटे की हालत होगी, बहुत हालत खराब हो गई थी इसकी। तो इसको देना, क्या हो गया था तेरे को? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अभिनव आनंद है। मुझे कोरोना हो गया था और बहुत ज़्यादा खांसी बहुत तेज़ होता था, बहुत तेज़। रात में मतलब रात में सो नहीं पाता था, सुबह उठ के लगातार खांसी करता रहता था। पापा, माँ और मेरी बहन डॉक्टर है तो वो भी जगी रहती थी लगातार, उसी ने मेरा सेवा किया बहुत। इतना खांसी होता था? बहुत खांसी, रात भर मैं सो नहीं पाता था। ये कंठानिमृत नहीं पता था? नहीं, उस समय हमारा आरोग्य केंद्र भी है लेकिन उसमें नहीं आ पा रहा था, पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसमें शॉर्टेज थी इसकी। हाँ, ये जबरदस्त है। ऑर्डर भी ऐप पे हम लोग ने कोरोनिल मंगाया। ऑर्डर मी ऐप से हम लोगों ने बुक किया, कोरोनिल मंगाया और कोरोनिल की किट मंगाई। और ये स्वासारी गोल्ड नहीं खाया? स्वासारी गोल्ड मंगाया, स्वासारी गोल्ड खाया बाद में। ठीक हो गया, उसके बाद से कंटिन्यू लगातार चल रहा था। नहीं तो पूरे शरीर में। इधर बाम ये लगा इसकी के मम्मी है जी। हाँ, इसने इसको बाम लगाया। मैंने बोला था बाम की लपेट लगाओ। हाँ? और जो है क्या किया था? वही बाम लपेट के तब उसको रखी थी, बहुत सीरियस हो गया था। और मेरे पति है, बच्चों को तो देख करके माँ बाप को ना बहुत दिखती थी कि मेरा बेटा मर ना जाए, और हाथ पैर कांपे और ये बाम लगाते रहते, प्रणाम कराते रहते। रोते रोते लोगों ने हल्दी प्याज का भी छोड़ा और अपनों को बचा लिया। काढ़ा इसे दोनों टाइम देती थी बाबा जी। दिव्य धारा और हल्दी का लेप भी लगाया था बाबा जी। मिलाकर तो फिर इसे ठीक किया। रात में दूध में हल्दी डाल के देती थी, उसका बहुत सीरियस हो गया था बाबा जी। क्या दिखता था उस समय? अभी भी याद करते हैं तो रो पड़ती हैं ऐसे। उस समय ये हालत थी, लोग अभी भूल गए उन थोड़ा सा उन दिनों को याद करते हैं ना। चारों तरफ लाशों के ढेर, अपनों को खोना, क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन योग आयुर्वेद ने करोड़ों लोगों को बचाया और आगे भी बचाएगा। चल अब तो बच गए सब है। अब इसकी माँ को अभी भी वो याद करती है तो आंखों में आंसू आ गए इसको बेचारी को। क्या करें, ऐसे ऐसे लोगों ने योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से अपने आप को बचाया है। એટલા માટે હું કહું છું, योग करो, निरोग रहो।